بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ہندوستان میں کووڈ 19 کے ریکارڈ 7500 کیس، بہت جلد جرمنی اور فرانس کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ امت شاہ نے کی مودی سے ملاقات، چیف منسٹرز کے خیالات سے واقف کرایا، لاک ڈاؤن کے بارے میں ہفتے کو ہوگا فیصلہ۔ برازیل میں ایک بار پھر 24 گھنٹوں میں 1000 سے زیادہ جانیں گئیں، رشیا میں ریکارڈ 232 موتیں۔ سعودی عرب میں اتوار سے 90,000 مسجدیں کھل جائیں گی، سینیٹائزیشن کا کام جاری، ترکی میں بھی مساجد کھول دی گئیں۔ ایران میں 2800 نئے کیس پائے گئے، 2 مہینے کی سب سے بڑی تعداد۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کے کیس 60 لاکھ ہو گئے، موتیں 3,63,000۔ امریکہ کے کئی شہروں میں بلیک شخص کی پولیس کے ہاتھوں موت پر غصہ، منیپولس سٹی میں پولیس اسٹیشن کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ مودی کے ساتھ انڈیا چائنا تناؤ پر بات چیت کی، صدر ٹرمپ کا بیان، ہندوستان نے دعویٰ رد کر دیا، کہا کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب لاک ڈاؤن کی مدت 2 دن بعد ختم ہونے والی ہے اور حکومت اگلے قدم کے بارے میں غور کر رہی ہے، ہندوستان میں کورونا وائرس کے اب تک کے سب سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 7,466 کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں کورونا وائرس کے مریض 1,68,000 سے زیادہ ہو گئے اور ملک میں اب تک 4,800 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں۔ ہندوستان نے موتوں کے معاملے میں چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جس رفتار سے ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیس بڑھ رہے ہیں، اس کے مد نظر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہندوستان جلد ہی فرانس اور جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اب تک ہندوستان کووڈ 19 سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں 90 نمبر پر ہے اور اس نے ترکی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزارت صحت نے ایک دن میں 175 موتوں کی تصدیق کی۔ ہندوستان میں ابھی سرگرم کووڈ کیس تقریباً 90,000 ہے۔ اب تک 71,000 لوگ کووڈ 19 سے بیمار ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں۔ امکان ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کے بارے میں ہفتے کو فیصلہ کرے گی۔ بعض ریاستوں نے اپنے طور پر لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر ہے کہ وزارت داخلہ مختلف ریاستوں اور سیکٹرز کے خیالات اور رپورٹس کا تجزیہ کر رہی ہے اور کسی بھی فیصلے سے پہلے ان باتوں کو نظر میں رکھا جائے گا۔ کانگریس حکومت والی ریاستوں نے لاک ڈاؤن ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ کیرلا نے مطالبہ کیا ہے کہ مذہبی مقامات کو کھول دیا جائے۔ گوا کے چیف منسٹر پرمود ساونت نے امت شاہ سے اپنی بات چیت کے بعد دعویٰ کیا کہ لاک ڈاؤن اور 2 ہفتوں کے لیے بڑھایا جائے گا۔ ہریانہ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن 31 مئی کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ ایک دن پہلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ بات چیت کی تھی اور لاک ڈاؤن بڑھانے کے بارے میں ان کی رائے مانگی تھی۔ زیادہ تر چیف منسٹرز نے 31 مئی کے بعد لاک ڈاؤن بڑھانے کی تائید کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ معاشی سرگرمیاں بحال کرنی چاہیے۔ حال ہی میں عہدیداروں نے اشارہ دیا تھا کہ ملک میں لاک ڈاؤن 15 دن کے لیے بڑھایا جائے گا، لیکن لاک ڈاؤن 5 میں نرمیاں دی جائیں گی۔ اب تک لاک ڈاؤن سے پہلے اس طرح کی میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی لیا کرتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ امت شاہ نے چیف منسٹر سے بات چیت کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کے بارے میں تمام چیف منسٹرز کے خیالات سے انہیں واقف کرایا۔
वेस्ट बंगाल में 1 जून से इबादतगाहें खोल दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोले जाएंगे, लेकिन 10 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। एक सर्वे में कहा गया है कि बिहार में 50% से ज्यादा मजदूर दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहे हैं और 70% से ज्यादा मजदूर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और सिर्फ 1% मजदूरों के पास कुछ पैसा है। हाल ही में अलग अलग मकामात पर काम करने वाले मजदूर अपनी आबाई रियासतों को वापस हुए हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च के महीने में हिंदुस्तान की घरेलू पैदावार या जीडीपी 3.1% रही। ये कई एक्सपर्ट्स के अंदाजों से बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद 4.7% के अंदाजे से कम है, जो इससे पहले के 3 महीनों में रिकॉर्ड किया गया था। कतर में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 3 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। कतर में कोविड-19 के केस 32,000 से ज्यादा हो गए हैं और मौतें 36 हैं। वर्ल्ड बैंक ने फिलिपाइन को कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए $500 मिलियन का कर्ज दिया है। पोलैंड के वजीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि 19 जून से फुटबॉल फैंस को स्टेडियम्स में आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 25% सीटों के टिकट्स बेचे जाएंगे ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इंडोनेशिया में 667 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 24 नई मौतें हुई। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का बुरी तरह मुतासर मुल्क है, जहां पर केस 25,000 से ज्यादा हैं। रशिया में एक दिन में 232 मौतें रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही रशिया के कोविड-19 मौतें 4,300 से ज्यादा हो गई हैं, जबकि वहां पर 3,87,000 केस पाए गए हैं। रशिया में रोजाना बड़ी तादाद में नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 8,500 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में जो मौतें हुई हैं वो रशिया में अब तक की सबसे ज्यादा है। रशिया, अमरीका और ब्राजील के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा तीसरा मुल्क है। ब्राजील में एक बार फिर 1,000 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई। साउथ अमेरिका के इस मुल्क में कोविड-19 के केसेस अब तक 4,40,000 हो चुके हैं। ब्राजील अमरीका के बाद दूसरा बुरी तरह मुतासर मुल्क है, जहां मौतें 27,000 हैं। थाईलैंड में पाबंदियां नरम करने का फैसला किया गया। इसके अलावा कर्फ्यू का वक्त भी कम किया गया। सिंगापुर की वजारत सेहत ने 611 नए केसों की तस्दीक की। थाईलैंड में 11 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। चाइना में कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह बात बताई। चाइना ने ऐलान किया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी 30 जून तक बरकरार रहेगी। साउथ कोरिया में 58 नए केस सामने आए। सोल शहर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों में 741 का इजाफा हुआ। जर्मनी कोरोना वायरस से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में 8वें नंबर पर है, जहां 1,82,000 केस पाए गए। पूरी दुनिया में कोविड-19 केसेस 60 लाख के करीब हो गए हैं और मौतें 3,63,000 रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका 18 लाख केसों के साथ पहले नंबर पर है, जहां 1,04,000 के करीब मौतें हुई हैं। कोलंबिया में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नेशनल क्वारंटीन जुलाई की पहली तारीख तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन मुल्क के बाज़ हिस्सों में कुछ नरमियां दी गई हैं। अल्जीरिया में लॉकडाउन 13 जून तक बढ़ाया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। हिंदुस्तान में कोविड-19 के रिकॉर्ड 7,500 केस। बहुत जल्द जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ देगा।
अमित शाह ने की मोदी से मुलाकात, चीफ मिनिस्टर्स के ख्यालात से वाकिफ कराया, लॉकडाउन के बारे में हफ्ते को होगा फैसला। ब्राजील में एक बार फिर 24 घंटों में 1000 से ज्यादा जानें गईं, रशिया में रिकॉर्ड 232 मौतें। सऊदी अरब में इतवार से 90,000 मस्जिदें खुल जाएंगी, सैनिटाइजेशन का काम जारी, तुर्की में भी मसाजिद खोल दी गईं। ईरान में 2800 नए केस पाए गए, 2 महीने की सबसे बड़ी तादाद। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केस 60 लाख हो गए, मौतें 3,63,000। अमेरिका के कई शहरों में ब्लैक शख्स की पुलिस के हाथों मौत पर गुस्सा, मिनीपोलिस सिटी में पुलिस स्टेशन की इमारत को आग लगा दी गई। मोदी के साथ इंडिया चाइना तनाव पर बातचीत की, सदर ट्रंप का बयान, हिंदुस्तान ने दावा रद्द कर दिया, कहा कोई बात नहीं हुई। सऊदी अरब में कई जगह दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। लोगों ने नरमी के पहले दिन मॉल्स में पहुंचकर खरीदारी की, कई लोग तफरीह के लिए भी समंदर के किनारे देखे गए। सऊदी अरब में इतवार से 90,000 से ज्यादा मस्जिदें खुल जाएंगी। इस सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं और मस्जिदों को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से कहा गया है कि वो अपने मोबाइल फोन्स में कुरान मजीद पढ़ें। यह भी कहा गया है कि वो अपने घरों से वजू करके आएं और नमाजियों के बीच 2 मीटर का फासला रखें। बुजुर्गों, बीमारों और 15 साल से कम उम्र बच्चों से कहा गया है कि वो घरों पर ही नमाज पढ़ें। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद ये पाबंदियां हटाई जा रही हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस 80,000 हैं और 441 मौतें हुई हैं। यूएई में 563 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 3 नई मौतें हुई हैं। ओमान में 811 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां कोविड-19 के केसेस 10,000 हो गए। तुर्की में बाज मस्जिदें खोल दी गईं। पिछले 74 दिनों बाद मुल्क में जुमे की नमाज अदा की गई। तुर्की मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। ईरान में कोरोना वायरस के 2 महीने के सबसे ज्यादा केसेस पाए गए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,800 केस पाए गए। ये 2 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी तादाद है। ईरान में अब तक सिर्फ एक सूबे खुज़स्तान में पाबंदियां हैं, जो इराक सरहद के करीब है। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक मुल्क में 64,000 से ज्यादा मरीज रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 1,300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस दौरान बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के सिंध सूबे में रिकॉर्ड मौतें हुई। पाकिस्तान के कई मकामात पर जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा की गई। कई जगह देखा गया कि समाजी दूरी पर अमल नहीं किया गया। पाकिस्तान में जून में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब देखते हैं कोरोना वायरस से हटकर कुछ खबरें। अमेरिका के मिनीपोलिस में एक ब्लैक शख्स की पुलिस के हाथों मौत पर पूरे मुल्क में गुस्से का इजहार किया जा रहा है और कई शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं और कई जगह गड़बड़ भी हुई है। एहतजाजियों ने मिनीपोलिस में जबरदस्त मुजाहरा किया और पुलिस स्टेशन की इमारत को आग लगा दी। जॉर्ज फ्लॉयड नामी इस नौजवान की पीर को मौत हुई थी जब एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटने से उसकी गर्दन को कई मिनट तक दबा कर रखा था। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्लैक नौजवान चिल्ला रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन इसके बाद उसके जिस्म की हरकत बंद हो जाती है और उस वक्त भी पुलिस ऑफिसर का घुटना उसकी गर्दन पर रहता है। इस वाक़े से जुड़े 4 पुलिस ऑफिसर्स को हटा दिया गया है, लेकिन फ्लॉयड के घर वाले, कम्युनिटी लीडर्स और मकामी लोगों ने जिम्मेदार पुलिस वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। जॉर्ज के भाई ने कहा कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें फांसी देनी चाहिए। हॉलीवुड की कई शख्सियतों ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। कोलंबस, ओहायो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और दूसरे मकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए। लुइसविल में भी रैलियां निकाली गईं।
कोलोराडो के डेनवर में सैकड़ों लोग जमा हुए। मिनीपोलिस में मुसलसल तीसरी रात मुजाहरे हुए। हाल ही में केंटकी में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। शिकागो, फोनिक्स और मेम्फिस में भी मुजाहरे हुए। जॉर्ज फ्लॉयड का जो वीडियो सामने आया है उससे ये पता नहीं चलता कि झगड़ा शुरू कैसे हुआ था। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल और FBI एजेंट ने एक बयान में कहा कि अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट इस मामले की तहकीकात कर रहा है और इसे काफी अहमियत दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो और उनकी हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने कई मरतबा ऐसे इल्जामात का सामना किया है कि वो नस्ली तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने मुतनाज़ बयान दिया जिसमें उन्होंने एहतजाजियों को ठग करार दिया और उन पर तनकीद की। मिनीपोलिस के मेयर ने पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जिन्होंने फ्लॉयड को गिराकर घुटना गर्दन पर रख दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मिनीपोलिस में पुलिस की इमारत जलाए जाने पर तनकीद करते हुए एहतजाजियों को ठग करार दिया। उन्होंने रिमार्क किया कि जब लूट शुरू होती है तो शूट शुरू होता है। उन्होंने कहा कि ये ठग जॉर्ज फ्लॉयड की याद की तौहीन कर रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे की चीफ मिशेल बैचलेट ने इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने एहतजाजियों से पुरअमन रहने की अपील की। हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान किसी भी बातचीत को गलत बताया। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने चाइना और इंडिया के दरमियान तनाव के बारे में वजीर आजम मोदी से बातचीत की, लेकिन हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि 4 अप्रैल के बाद से दोनों लीडर्स के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। जब ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाएं मांगने के लिए फोन किया था, जुमेरात को ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ा झगड़ा हो रहा है। हिंदुस्तान में मुझे पसंद किया जाता है, मैं मोदी को पसंद करता हूं, वो एक जेंटलमैन है। दोनों मुल्क 1.4 बिलियन से ज्यादा आबादी रखते हैं। दोनों के पास ताकतवर फौज है। हिंदुस्तान भी खुश नहीं है, चाइना भी खुश नहीं है। मैंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की है। चाइना के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से मोदी का मूड काफी खराब है। इससे पहले ट्रंप ने हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान सुलह कराने की पेशकश की थी। चाइना ने इस पेशकश को रद्द कर दिया है, जबकि हिंदुस्तान ने कहा कि वो मसाइल हल करने के लिए चाइना से बातचीत कर रहा है। इस तरह हिंदुस्तान ने शाइस्तगी के साथ ट्रंप की पेशकश को रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी गुजर गए हैं। उनकी उम्र 76 साल थी। उन्होंने रायपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली, जहां कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें शरीक किया गया था। जोगी कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने 2016 में कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी एक नई पार्टी बनाई। छत्तीसगढ़ में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। हैदराबाद के करीब एक बार फिर एक जंगली जानवर देखा गया। इस मरतबा प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस में तेंदुए को देखा गया। ओहदेदारों का ख्याल है कि ये वही तेंदुआ है जो इससे पहले काटेधन इलाके में देखा गया था। एक दिन पहले नलगुंडा में एक तेंदुआ पाया गया था, लेकिन उसे हैदराबाद जू ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने तेंदुए से सही ढंग से नहीं निपटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के रिकॉर्ड 7,500 केस। बहुत जल्द जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। अमित शाह ने की मोदी से मुलाकात, चीफ मिनिस्टर्स के ख्यालात से वाकिफ कराया। लॉकडाउन के बारे में हफ्ते को होगा फैसला। ब्राजील में एक बार फिर 24 घंटों में 1000 से ज्यादा जानें गईं। रशिया में रिकॉर्ड 232 मौतें। सऊदी अरब में इतवार से 90,000 मस्जिदें खुल जाएंगी। सैनिटाइजेशन का काम जारी। तुर्की में भी मसाजिद खोल दी गईं। ईरान में 2,800 नए केस पाए गए, 2 महीने की सबसे बड़ी तादाद। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केस 60 लाख हो गए, मौतें 3,63,000।
امریکہ کے کئی شہروں میں بلیک شخص کی پولیس کے ہاتھوں موت پر غصہ، منیپولس سٹی میں پولیس اسٹیشن کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ مودی کے ساتھ انڈیا چائنا تناؤ پر بات چیت کی، صدر ٹرمپ کا بیان، ہندوستان نے دعویٰ رد کر دیا، کہا کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔